ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਫੈਕਟਸ ਔਰ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਬਰਤਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸੀਗੀ 15,000 ਕੇਸਿਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ 30,000 ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ 37,000 ਹੋ ਗਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7,000 ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਹੈਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 1100। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 609 ਕਨਫਰਮਡ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, 467 ਕਿਉਰਡ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ 16 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡੈਥਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, 16 ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਸੀਗੇ। ਦੇ ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਆਈਦਰ ਦੇ ਵਰ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਕੋਈ ਡਾਇਲਿਸਿਸ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਘੜੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो पहले ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੁਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਰੂਮ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਅਗਰ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ CCC ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਵਲ 1 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਲੈਵਲ 1 ਫੈਸਿਲਿਟੀ 4 ਮੈਪਡ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਟ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਾਪੜ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ CCC 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਹੈਗੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ 'ਚ 162 ਐਕਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, CCC 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਵਲ 2 ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਲੈਵਲ 2 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀ 4 ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਾਭਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਮਾਨਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 114 ਹੈਗੇ ਜੀ। ये थोड़े जे सिम्टोमैटिक है बट दे आर स्टेबल, इस तरह की कोई घबराने की लोड़ नहीं हैगी। बाकी साढ़े 5 पेशेंट आर्मी कंटोनमेंट च है, बाकी सारे 260 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ वो होम आइसोलेशन च है। तो कहने का भाव ये है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ये पता होना चाहिए कि साड़ी किमें फैसिलिटीज आती है। लेट से मैं कल को पॉजिटिव हो जावा और मैं सिम्टोमैटिक है तो मैं सीधा लेवल 2 च जावांगा। अगर मैं एसिम्टोमैटिक है, अगर मेरे घरे प्रबंध है मैं घर च रवांगा, अगर घरे प्रबंध नहीं है तो मैं मैरिटोरियस स्कूल च आ जावांगा। फैसिलिटीज सारी ठीक है, किसी तरह का भी कोई इशू नहीं है। जिथे भी माड़े मोटे इशू आते साढ़े नोडल अफसर, साड़ी टीम, सारे जेडे फील्ड वॉरियर है वो सारे ने सारे जेडे काम कर रहे हैं। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा अधिकारी, कोई भी ऐसा नुमाइंदा, चाहे वो सैनिटेशन वर्कर हो, चाहे नर्स हो, चाहे अपने पुलिस के मुलाजिम होवे ਜਿਹੜੇ फील्ड 'ਚ काम कर रहे हैं, ਸਾਡੇ पटवारी हो, ਸਾਡੇ तहसीलदार हो, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ काम कर रहे हैं। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक और गल ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। एक ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ TB ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ 24-25 ਸਾਲ ਦੇ। ਉਹਦਾ यही कहना है कि सर फटाफट मैं ठीक होके आवांगा और सब तो पहला ਜਿਹੜਾ काम होगा मैं वापस पेशेंट देखना शुरू करूंगा। तो दिस शोज आर कैरेक्टर, दिस शोज आर नेशन बिल्डिंग। और ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ये संदेश देना है कि सारे बंदे ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ प्रोत्साहित ਹੈਗੇ, किसी तरह की भी कितने भी कोई मोटिवेशन की कमी नहीं। ਅਸੀਂ अपनी मेहनत कर रहे हैं। हर एक बंदा, हर एक अधिकारी, हर एक तबका ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ काम कर रहे हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਨੋਬਲ ਇਤਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਟ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 80 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਕੱਲ 40 ਕੇਸਿਸ ਆਏ, ਬਟ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 3200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ CCC ਟੋਟਲ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 600 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, 8 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੋਪਖਾਨਾ ਮੋੜ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਮਾਣਾ 'ਚ 2 ਸਾਡੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਤੇਜ ਕਾਲੋਨੀ, ਮੱਛੀ ਹੱਟਾ, ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਿਨੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਟਫ ਜੌਬ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਦੇਖਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ, SDM ਸਾਹਿਬ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2-3 ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪॉर्टेंट ਨੇ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ। मतलब मेरा ਜਿਹੜਾ अपना तजर्बा है पिछले 3.5 महीने का इस पूरी मुहिम च, मास्क जेड़े बंदे ने पहना वो कहीं ना कहीं ਜਿਹੜਾ हैगा सचेत रहे, कहीं ना कहीं वो इन्फेक्ट नहीं होए। सोशल डिस्टेंस रखो, हाथ धो, सैनिटाइजर का यूज़ करो, घरे अपना नॉर्मल साबुन यूज़ करो, गर्म खाओ, गर्म पानी पियो, अपने बुजुर्ग अपने बच्चा का ध्यान रखो। एक सब तो इंपॉर्टेंट, बिना बात के घर से ना निकले जी। मतलब जब तक तुहानू कोई अवॉइड कर सकते हो प्लीज़ अवॉइड करो, अनअवॉइडेबल अगर अवॉइड कर सको प्लीज़ करो। अदरवाइज दिक्कत की तुसी जिन्ना बाहर जाओगे उन्ना तुसी संक्रमित होगे, उन्ना तुसी इन्फेक्ट होने का तुहाडा चांस वध जाता है जी। तो ये तो साड़ी कोविड की तैयारी सी। हुण अपना फ्लड सीजन है दूजा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिमें कि इस बार बारिशा भी तुसी देखिया बहुत ज़्यादा हो रही है, शहरों के विच पानी की क्लॉगिंग हैगी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि देखो पटियाला जो भी है जिन्ना भी अपनी बारिश पैंदी है पानी निकल जाता हैगा। अगर एक साथ पैंदा 3, 4, 5, 6 घंटे च निकल जाता है। कितने कितने लो लाइंग एरियाज है उत्थे असीं काम कर रहे हैं। साडा ड्रेनेज विंग है, साडी कॉरपोरेशन की सीवरेज विंग है, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। तुसीं दूजे शहर च भी देखा है कई बार पानी बहुत ज़्यादा बन जाता है, बट अपने पटियाला अगर तुसीं पिछले 3-4 दिन देखो किसी तरह की भी कोई पानी की क्लॉगिंग या किसी तरह की भी कोई शिकायत साडे कंट्रोल रूम च नहीं आई है। घग्गर दरिया जो सब तो इंपॉर्टेंट है, साडे राजपुरा, घनौर, दूधन साधा जिथे टांगरी और मारकंडा मिलती हैगी, उसके बाद नीचे जाके समाणा को टच करके अपने पात्रा इलाके च होते हुए खनौरी निकल जाती है। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ 2 करोड़ की लागत च नरेगा का काम कराया, स्ट्रेंथनिंग बंद बनाए। पिछले साल साड़ी 3 ब्रीचेज हुई सी, इस बार वो ब्रीचेज में असी प्लग करता है। कुछ ब्रिजेस टूटे से वो भी असी बनाते हैं। मैं खुद 2 बार दौरा कर चुका जी। आस करदा कि नेचर की फ्यूरी के सामने साडा किसी का बस नहीं चलता, बट आस करिए, कोशिश करिए एज अ कम्यूनिटी, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वी आर ऑलवेज देयर। असी इस बार विल एंश्योर कि घग्गर दरिया च किसी तरह का भी ब्रीच ना हो। दूजे पासों जंबो वाली चो जी सब तो वड्डी चो है, जोड़ा सीधा सरहद तो जोड़ा है इकट्ठा होंदे हुए नीचे पात्रा तक जाती है, बाद च घग्गर दरिया च मिल जाती है। यदी भी सफाई पूरी तरह से हो गई है। शहर च जो मॉडल टाउन ड्रेन है वो भी सफाई मुकम्मल हो गई है। उसी तरह जो रोटी हैगा नाभे के वाल जो अपनी ड्रेनेज हैगी ड्रेन हैगी वो भी सफाई पूरी हो गई है। बट ਆਪਾਂ फिर तो ये सचेत रहना किसी तरह के भी लोगों को मैं ये अपील करता, पिंड वाले स्पेशली ਜਿਹੜਾ नैचुरल ड्रेनेज का वे है उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट ना करो जी। सब तो पहले आपको जान बचाना है, फिर घर, फिर अपनी फसल। कई बार मैं देखता जी पिंडा के 2 पिंड आपस में मिल जाते, एक बंदा जो डाब ला देता है। इस तरह के भी कोई मैन मेड ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। नैचुरल जो ड्रेन है उन्होंने बहन दो, जिन्नी जल्दी बहेगा उन्नी छेती आप फ्री होवांगे। तीजा जो सब तो इंपॉर्टेंट है, आप पिछली बार डेंगी के जो डेंगी सीजन है तुसी देखा 2017, 18, 19 असी डेंगी के मार्च काफ़ी से 17, 18 के 19 के असी देखा 2100 केस से 18 के कम होकर 90% गिर गए थे।
200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੇਸਿਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। तो मैं आस करता साड़ी जी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एपिडेमोलॉजिस्ट है, कॉरपोरेशन ईओ दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। मैं फिर एक ही मैसेज असी काम कर रहे हैं जी, बट पिछले साल जिवें आप सक्सेसफुल रहे, इस बार भी मैं बस ये तुहाडे तो उम्मीद करदा जी अपने घरे प्लीज़ बार बार चैक करते रहो। कई बार देखन चाहे तुसी चाय पी के अपना जिहड़ा ग्लास भी अगर तुसी कंच रख देंदे हो 3-4 दिन अगर नहीं हटाते हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी जिहड़ा हैगा ਉਹਦਾ ਲਾਰਵਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ पिछली बार। तो ये बहुत छोटी गल है। फ्रीज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਟਪਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਰਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੂਲਰ, तो छोटी छोटी चीज़ अपने बच्चों को सचेत रखो। हो सकता है ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ये टास्क दे दो अपने घरे कि ਤੁਸੀਂ देखो पानी कितने ठंडा होता है इकट्ठा होता है। टायर अगर ਤੁਹਾਡੇ घरे कोई टायर पड़ा है ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ सफाई करो। कोशिश ये रखो जी अपने घर की साफ सफाई रखो, पानी इकट्ठा ना होने दो। ये फ्रैश वाटर च होंदा हैगा। आप दोहरी मार नहीं झेल सकते। कोविड एक पासे चल रहा है, दूजे पासे अगर डेंगू आता है इट विल बी वेरी टफ फॉर अ फैमिली। सो वी आर योर फैमिली, वी आर देयर फॉर यू, बट थोड़ी सी प्रिकॉशन साडे लिए बहुत हेल्प करेगी। हुण कुछ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡੈਂਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਐਸਡੀਐਮ, ਸਾਰੇ ਐਸਐਮਓਜ਼, ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ और ये भी ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ डायरेक्शन है। इस बार ईच एंड एवरी हाउस होल्ड विल बी चेक। चालानिंग भी होएगी जी। पिछली बार भी असी चालानिंग की हैगी। पिछली बार असी ये प्रोविजन भी रखा सीगा कि 2 बार तो ज़्यादा किसी के घर लार्वा पाया जाएगा आप एफ आई आर करांगे, बट वी डोंट वांट टू टेक एक्शन अननेसेसरी। जब तक सानू लगता है कि तुसी कोऑपरेट करो वी विल ट्राई टू कोऑपरेट विद यू। दूजे क्वेश्चन जिहड़ा है ऋषभ गुप्ता जी हैगे, ये पूछते हैं कि एज पटियाला इज विटनेसिंग सर्ज इन कोविड केसेज स्टार्ट एंटीजन टेस्टिंग इन पटियाला लाइक दिल्ली एंड तेलंगाना टू इंक्रीज डेली टेस्टिंग कैपेसिटी। ऋषभ जी सच्ची गल ये है, सही गल ये है कि पिछले हफ्ते साडे वालों एंटीजन टेस्टिंग का शुरुआत की गई है। इत्थे असी एज अ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया एंटीजन टेस्टिंग। पंजाब सरकार वालों एंटीजन टेस्टिंग 4 शहरों के शुरू की गई सीगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। तो सानू इस एंटीजन टेस्टिंग का बहुत फायदा हुआ। तुहाडा सुझाव एकदम ठीक है, इट इज़ एकदम राइट कि आप दिल्ली और तेलंगाना से काफ़ी इहदा फायदा हुआ। असी भी इत्थे इहदा यूज़ कर रहे हैं और बहुत फायदा उठा रहे हैं। एक और साडे लाइव क्वेश्चन हैगा सनी साहनी जी हैगे। इन्हों का क्वेश्चन है प्लीज़ द सिचुएशन इज गोइंग ऑन वर्स सो प्लीज़ टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन टू प्रिवेंट पब्लिक फ्रॉम COVID-19। माई क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज गवर्नमेंट प्लान फॉर पीपल हुज बिजनेस इज कम्प्लीटली शट फॉर लास्ट 4 मंथ लाइक इंस्टीट्यूशन अदर हाउ वुड बी सर्वाइव। सनी जी टाइट रोप हैगी। सब तो पहला तुहाडा क्वेश्चन सीगा कि आपां जिहड़ा हैगा की स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। साडे वालों चालान कीतियां जा रही हैं SSP साहब वालों, पुलिस वालों, साडे कॉरपोरेशन के महकमे वालों भी हुण ऑथराइज करता हैगा। जिहड़े बंदे मास्क नहीं पहन रहे उन्हां दी चालानिंग कर रहे। मैं बट फिर वही कह रहा जी चालानिंग किन्नी करोगे, किन्नी लोकां नूं तुसीं समझाओगे। जब तक लोग आपे जुड़ जाण तो उहदा कोई दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। बट वी आर टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन एंड कल भी जिहड़ा हैगा साडे वालों कई मैरिज पैलेसिस चैक किया गया जिथे भी कोई भोग कोई किसी तरह का फंक्शन जिथे 30 तो ज़्यादा बंदे अगर इकट्ठे हो रहे हैं उत्थे असी एक्शन ले रहे, FIR भी दर्ज हो रही है। कोई फेक न्यूज़ अगर फैला रहा है ਉਹਦੇ अगेंस्ट भी असी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। दूजा जिहड़ा तुहाडा क्वेश्चन है बिजनेस जिहड़े 4 महीने तो शट हैगे उन्हां दा की हैगा। सनी जी प्रॉब्लम ये है कि असी जिहड़ा हैगा होम्स मिनिस्ट्री जिहड़ी हैगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਔਨ ਲੌਕਡਾਊਨ 1 2 3 4 5 ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 95% ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆਰ ਓਪਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਇसी तरह ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं है, गुड्स ਦੀ ਕੋਈ मूवमेंट ਦੀ कोई रुकावट नहीं है। येस एक दो इशूज़ है कि स्कूल नहीं खुल सकते बिकॉज ये बच्चे हैं और ये सब तो वुलनरेबल पॉपुलेशन है। इन्हों ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ रिस्क ਤੇ नहीं दिला सकते। हाँ किसी तरह का अगर कोई जिम हैगा हाले तक सानू कोई सरकार की नोटिफिकेशन नहीं है कि जिम खोल सकते। बाकी जिमें जद भी कोई नोटिफिकेशन आएगी असी तुहानू अशेयर कर दें नाल दे नाल उस चीज़ को ओपन किया जाएगा विद प्रॉपर स्पिरिट एंड फिलॉसफी। हरप्रीत उप्पल जी का क्वेश्चन है डेंगी के बारे असी की कर रहे हैं जी। मैं तुहानू जिवें कि पहले ही दस्सिया कि डेंगी के लिए साडे कोल एक पुराना सॉफ्टवेयर हैगा जिहड़ा पिछले साल असी यूज़ किया सीगा। मैं फिर भी कह रहा सीगा कि 90% रिडक्शन ऑफ केसेज हुए सीगे पिछली बार अगर तुसी कंपेयर करो 2018 दे विच नाल। तो असी फिर वही एज एट कॉन्क्रीट टीम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करांगे। लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। फिर भी यही मैसेज है कि लोग सानू दसन कि अगर इत्थे लार्वा पाया जा रहा साडी हेल्थ टीम उत्थे जाके उन्होंने जिहड़ा हैगा नजिठण लई पूरी तैयार है जी।
विशाल वर्मा जी है, ये समाना तो है, ये कहते जी समाना च कोविड केसेस आर एट पीक एट दिस मोमेंट, both are parks and municipal council park always have mass gathering in morning and evening with no social distancing. Please close both the parks and precautions to stop the spread. एकदम ठीक है विशाल जी, बट पार्क ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, दैट इज नॉट एन इशू। ਚੰਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮਾਸਕਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਲਾਨਿੰਗ ਔਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। हरजोत सिंह जी है जी, फॉर आउटसाइडर ट्रैकिंग वाई गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग दी हेल्प फ्रॉम टेलीकॉम ऑपरेटर्स, कंपनीज हैव रियल टाइम डेटाबेसेस, प्लीज टेक सपोर्ट वेयर एवर पॉसिबल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू हरजोत जी, लोगों का सपोर्ट बहुत मायने रखता है, बहुत जरूरी है। बहुत खुशी की गल है, कल ही साडी एक मीटिंग हुई है, इतिहास सॉफ्टवेयर है साडा, इतिहास सॉफ्टवेयर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ICMR ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਔਰ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਕੁਆਇਰਿੰਗ ਅਨਦਰ 2 to 3 days ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ दैट इट इज इंप्लीमेंट। मैं एक बार ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਬਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ICMR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, तो ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰੈਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੇ लोकेशन है वो एक्टिव हो जाते हैं, सानू पता लग जाएगा लेट से मैं गया, मैं लेट से समाना गया, पात्रा गया, किस ऑफिस से बैठा, तो 10 दिन की सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाएगी। ये साडे काम भी बड़ा सौखा हो जाएगा, लोगों को बहुत ज़्यादा फील्ड से जाके केस स्टडी या इंटरव्यू करने की लोड़ नहीं पाएगी। तो एक तो ये सॉफ्टवेयर साडा 3 या 4 दिन से इंप्लीमेंट हो जाएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਟਾਵਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੈਟ ਸੇ ਕੋਈ ਭੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। तो दैट इज द पोटेंशियल सोर्स, तो सानू रूट भी पता लग जाएगा कितने की लोकेशन से ज़्यादा पॉजिटिव है, ये सानू कंटेनमेंट एरिया बनाने से भी बहुत फायदा करेगा। तो जदों भी ये फाइनल होएगा मैं तुहाडे नाल एक बार फिर रूबरू होवांगा ते अपने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के जरिए पटियाला वासियों को भी ये बारे एक बार मैं प्रेस रिलीज़ भी कर देवांगा जी। DKS बराड़ साहब हैगे, ये कहते जी कोविड मरीजों को खाण लई की मैन्यू है, इन्हां दे ठहरन दे टाइम पास दे लई की तुसीं कीता हैगा। बराड़ साहब साडे वालों जो CCC है कोविड केयर सेंटर के सवेरे असीं चाह देंदे हैं 2 बार, उसके बाद ब्रेकफास्ट हैगा जो दलिया खाना चाहे दलिया खाते, परोठा है, दूध हैगा, दूध सब तो इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी होंगी ये। उसके बाद फिर दोपहर च साडे कोल सब्जी चपाती रोटी ते सलाद होंगी है, शाम नूं चाय और बिस्किट होंगी है, और रात को जिवें सादा खाना खाते दाल सब्जी रोटी चपाती सलाद। इन्हां दे रिजुविनेशन के लिए इन्हां दे कोई फैसिलिटीज़ के लिए असीं TV लगाया हुआ है, शब्द चलते हैं जिहड़े लोग रिलीजियस है, म्यूजिक हैगे, स्पीकर हैगे, बाहर एरिया भी हैगा, थोड़े बहुत वॉक कर सकते। 10 दिन का टाइम होंदा जिहड़ा आपां रखते हैं, TV और म्यूजिक इज़ इनफ। बाकी असीं कोशिश कर रहे हैं जिवें तिवें भी लोगों को जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए असीं नाल दे नाल कोशिश करते जो साडे विच हो सकता है। मनदीप पाल सिंह है जी, ये कहते जी कर्फ्यू लगाना चाहिए हर शुक्रवार शाम 6 बजे तो सोमवार सवेरे 6 बजे तक। मनदीप जी जिवें कि मैं दसिया कि ये प्रेरोगेटिव होम डिपार्टमेंट का, तुहाडी गल एकदम ठीक है। कुछ लोग कहते कर्फ्यू हटाना चाहिए, कुछ लोग कहते कर्फ्यू लगाना चाहिए, दो पक्ष है, दो गल हैगी, इट इज़ बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन। यस कर्फ्यू लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, दैट इज़ वी आर नॉट हैव दैट डिस्क्रिशन प्रेरोगेटिव, बट यस आपा की कर सकते, आपा सैटरडे संडे घरे रह के कर्फ्यू नूं इजाद कर सकते, आपा एज अ सोसाइटी आपा ये कोशिश करते कर्फ्यू ना लगाए, बट तुसी तो अपने घरे बैठ सकते हो। कोशिश ये करांगा, तुहाडी गल मैं पहुँचा दांगा सरकार नूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं भी लिख के भेज दांगा, जब भी किसी तरह की भी कोई नोटिफिकेशन आऊगी तुहानूं नाल दे नाल दस दिता जाएगा जी। एक कोविड तो और दूजे पासे हट के क्वेश्चन है, मनिंदर जैलदार साहब है, कसियाना पिंड है पटियाला अपने सब डिवीजन च पैंदा है, ये कहते साडा बहुत पुराना 100 साल पुराना टोबा है जी, ये लोग कब्जा कर रहे हैं। मनिंदर जी मैं चेक करवा लाँगा और आई विल मेक श्योर दैट अगले 2 दिनों से यदि मैं फील्ड वेरीफिकेशन करा के यदि जमाबंदी निकलवा के किन्नी थां से जिहड़ा टोबा है और किन्नी इंक्रोचमेंट हुई है, आई मेक अ टीम ऑफ SDM एंड DDPO विजिट करनगे। असी किसी तरह की भी इंक्रोचमेंट अलाउ नहीं करते। थैंक यू तुसीं ये सानू दस्सिया, और असी जिहड़ा हैगा इनू 2 दिन से जिहड़ा हैगा विल सॉल्व द प्रॉब्लम जी। मनदीप सिंह जी है जी, वही मैं कह रहा जी, जिवें मनदीप पाल सिंह अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि लॉकडाउन लगना चाहिए। मनदीप सिंह जी कहते लॉकडाउन प्लीज़ रिमूव करो संडे का। मैं वही कह रहा जी, 2 पक्ष है, केदी मानिए केदी नहीं मानिए, बट यस एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज़ योर राइट, तुसीं अपना व्यू दे सकते हो, जो भी तुहाडी राय आ रही है असी सरकार तक पहुँचा देवांगे जी।
सिंगम साहिल हैं जी, ये कहते हैं कि कर्फ्यू लगना चाहिए हैगा जी। मैं फिर वही कह रहा, कर्फ्यू का सारा डिस्क्रिप्शन सरकार का, जिमें तिवें जब भी होएगा मैं तुहानू दस दूंगा जी। जंतेश कुमार हैं, ये समाणा तो है, ये कहते जी लोग जेडे है समझ नहीं रहे, लोग की समझ नहीं रहे, 80% जेडे लोग मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे। जंतेश जी अगेन मैं आज फिर एक बार टीम नू वापस एक्टिवेटेड है, असं ये कोशिश करांगे आज मेजर चालानिंग कर देवा। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं समाणा जाके आया हैगा, उत्थे 60 to 70% लोग मास्क का यूज़ करे, जेडे 30-40% नहीं करे, असी विल क्रैक डाउन, विल इंश्योर कि वो सोशल डिस्टेंस और मास्क का जेड़ा साडा। अमन बवेजा है जी, ये कहते एक शॉपकीपर हैं, ये कहते जी साडा काम एकदम खराब हो गया है, इलैक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल फीस आदि ये इशूज़ है। व्यापार मंडल के नाल साडी बहुत एक्टिवली मीटिंग चलदियां रहिंदियां है, तुहाडे व्यापार मंडल के जिहड़े प्रधान है वो भी आए सीगे, असी भी अपने कमिश्नर कॉरपोरेशन वालों तुहाडे तक पहुँच करते हैं। अगर तुहाडे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही, प्लीज़ मेरा ऑफिस तुहाडे लिए खुला है, तुसीं कभी भी आओ। शॉपकीपरां दे लई कित्थे भी असी कोई शॉप बंद नहीं की है, अगर तुसीं कित्थे कोई इशू हैगा, कोई इन्फॉर्मेशन की डिस्टॉर्शन है, सानू आके दसो। इलैक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल फीस का तुहानू पता ही है, स्कूल फीस का केस हाई कोर्ट 'च चल रहा है, हुण कोर्ट दे विच हैगा। इलैक्ट्रिसिटी बिल का अपने पंजाब गौरमेंट के वालों बहुत ही सचेत ढंग नाल इस इशू नू चढ़ाया जा रहा है। मैं आस करदा कि पंजाब सरकार वालों कोई ना कोई सोल्यूशन जिहड़ा हैगा जल्दी दस दिता जाएगा जी। हरपाल सिंह जी कहते फ्राइडे नू सैटरडे बिल्कुल बंद करो, वही जवाब जी, जिवें जब भी कोई सोल्यूशन आएगा तुहानू दस दिता जाएगा। दिवेश गर्ग है जी, ये बच्चा है, आई एम दिवेश गर्ग, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। Sir, I request you to take some measures regarding Kiryana shop owner and vegetable vendor, and also making the positive cases and suspect cases list, because Kiryana shop owners and vegetable vendors keep delivering to their houses. बेटा एकदम ठीक है, बहुत चंगी गल है, तुसी क्वेश्चन पुटअप किया, बड़ा खुशी होती कि तुसी सारे बच्चे मिलके भी सोसाइटी में मोबिलाइज कर रहे हो। सब तो पहले जद भी ये अपने वॉल्ड सिटी के केस आया सीगा, सब तो पहले असी काम किया सीगा, सब्जी मंडी क्लोज ही करती सी, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 दिन अगर सब्जी मंडी क्लोज हो जाएगी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। करियाना शॉप ओनर जेडे साडे वेजिटेबल वेंडर उन्हों का असी पास बनाया, उन्होंने असी सैंपलिंग करते, रैंडम चैकिंग करते, कोशिश यही रहती कि कोई भी बंदा तुहाडे घर कोई सामान पहुंचा रहा है वो कोविड फ्री होवे, एंड वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। थैंक यू, तुसी ये क्वेश्चन पुटअप किया। तुहाडा दूजा क्वेश्चन भी हैगा, आर यू प्लैनिंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट मास्क विद रिपायरेटर्स एंड वॉल्स। बेटा क्वेश्चन यही है कि जेड़ा बंदा मास्क नहीं पहनेगा ਉਹਦੇ अगेंस्ट तो एक्शन लेना ही पैना है। तुसी बच्चे हो, तुसी अपने घर वाले ਨੂੰ समझाओ, अपने आस पड़ोस के तुहाडे दोस्त है उन्होंने भी कहो कि अपने पेरेंट्स ਨੂੰ समझाए, अपने रिश्तेदार ਨੂੰ समझाए। ट्रिगरिंग इफेक्ट होंदा हैगा, तुसी बच्चे जब सोसाइटी 'ਚ आ जाते हो ਉਹਦਾ कोई तोड़ नहीं है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।